یہ جو پرسنالٹی ہے جن کو ہم ایوارڈ دینے جا رہے ہیں، یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور چیئرمین ہے سینٹرل فارسٹ پروڈکٹس لمیٹڈ کے، یہ پریزیڈنٹ رہے کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کے، چیئرمین رہے پاکستان ہوٹل ایسوسیشن کے، پریزیڈنٹ رہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، پریزیڈنٹ منسٹر آف اسٹیٹ اینڈ چیئرمین ایکسپورٹ پروموشن بیورو رہے، پریزیڈنٹ رہے کچی میمن ویلفیئر کوآپریٹو سوسائٹی کے، چیئرمین کچی میمن خدمت فاؤنڈیشن فرام 2002 ٹو ڈیٹ، فارمر پریزیڈنٹ یونائٹڈ میمن جماعت، گولڈ میڈلسٹ فرام کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ فرام یونائٹڈ میمن جماعت، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ فرام کراچی ٹمبر مرچنٹ، اور ہمارے یہ لیجنڈ ہیں اس وقت میں اپنے والد صاحب کو نہیں بھول سکتا کہ جن کی جو محبت تھی، سختی تھی اور جو تربیت تھی وہ آج ہم کو سب کو یاد آ رہی ہے۔ وہ بھی خدمت خلق کے اندر لوگوں کے ساتھ دیتے تھے اور بڑا کام کرتے تھے۔ ہماری دادی کے نام کی وہ ڈسپینسری انہوں نے کھولی تھی، اور وہ ڈسپینسری کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ دیکھ کے مجھے موٹیویشن ہوئی کہ یہ ابا جو کام کرتے ہیں کہ میں کیوں نہ کام کروں۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ 1992 میں جب میں چیمبر میں پریزیڈنٹ بنا تھا، تو کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد نواز شریف صاحب اس وقت 92 میں وہ بڑا ان کے عروج پہ تھے وہ، تو انسیڈنٹلی ایک جگہ فنکشن میں لاہور میں وہ تھے، اس فنکشن میں بھی انوائٹیڈ تھا اور وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کراچی سے ناراض کیوں ہیں، آپ آتے کیوں نہیں، ہم نے آپ کو اتنی دفعہ انویٹیشن دی، آپ آئے کیوں نہیں۔ اور اس کے 3 یا 4 دن کے بعد ان کے ایک طرف لیٹر آیا کہ میں کراچی چیمبر میں آپ کی انویٹیشن میں آنا چاہتا ہوں۔ جب بعد میں انہوں نے سوچا تھا کہ بھئی یہاں پر ہے نا ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے لیے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے، تو بہت ساری ڈسکشن کے بعد اچانک انہوں نے اعلان کر دیا کہ عزیز جاوید صاحب کو ہم چیئرمین بنا رہے ہیں۔ ایوری باڈی واز سرپرائز کہ یار یہ میمن کو کیسے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو عروج دیتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی شان سے ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں، اپنا دماغ میں رکھیں کام میں، اور اپنے کام میں سنسیئرلی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ آخر میں ہماری جو برادری کے ایک فرزند جو ہیں ٹیلنٹڈ ہمارے خرم جعفرانی، واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی ایجنسی نئی شروع ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بڑی ترقی کی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے ان کو وش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور آگے جا کے اور کامیابی حاصل کرے۔ So ladies and gentlemen, please put your hands together for the Living Legend Award, Mr. Abdul Aziz Haji Yaqub Parwani. Is finally becoming a reality. Under the leadership of Kachhi Memon Foundation, supported by both the local and global community members, this project is now underway. Spanning a 1,712 square yards plot in Sadr near Lucky Star, construction is set to commence once the land payment is finalized by June 2024. This advanced secondary care hospital will feature inpatient and outpatient services, specialized surgical units, state-of-the-art radiology facilities, a dental unit, deaf and dumb children rehabilitation care,
a nursing school, a blood bank, and various other amenities. It will stand as a beacon of hope for Karachi and especially for the Kutchi Memon community, providing free healthcare to deserving patients by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We appeal for your unwavering support. Your generous contributions will be instrumental in making this landmark hospital a reality. मैं अजीज भाई से दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ बहुत मुख्तसर चंद अल्फाज आज के अजीज भाई से दरख्वास्त करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तकरीर का मौका तो नहीं है, लेकिन कुछ दिल की बातें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं अख्तर शदा साहब का मुबारकबाद देता हूँ और इनकी कोशिशों को अप्रिशिएट करता हूँ कि वाकई इन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया दिमाग में लाए और एक ऐसी चीज़ उन्होंने हमारी कम्युनिटी में लेकर आए जो कि अब हिस्ट्री बनेगी और आने वाले कई सालों तक ये चीज़ें यादगार के तौर पर समझी जाएंगी। आज के फंक्शन में मैं आज के चीफ गेस्ट उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। इनसे भी मेरे तकरीबन 24-25 साल का ताल्लुक़ रहा है और काफ़ी हमने इनके साथ मिल के काम भी किया है और इनकी बड़ी खिदमत भी हमारी कम्युनिटी के लिए हैं, ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए। आज के जो ये फंक्शन जिसको ऑर्गेनाइज किया है खुर्रम, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये भी हमारी कम्युनिटी के यंग बच्चे हैं जो वो भी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके जहन में ज़रूर ये बात आएगी कि मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने अपने मैसेज में बताया था कि ये खिदमत जो भी हैं ना वो हमारी फैमिली की जीन्स में है। मैं अपने वालिद साहब को देखता था तो मैं उस वक्त बहुत ही यंग था और उनको देख के उनसे कभी मेरे को मोटिवेशन नहीं थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी थी कि उनके काम के अंदर उसका काम का लगाव और डिवोशन है और तहकीक और काम करने की जस्तजू है, वो ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को हमेशा कामयाब करती है। तो मैं ज़रूर अपने बच्चों को ये नसीहत करूँगा कि आप लोग सिंसियरिटी से, ईमानदारी से अपने काम पे लगे रहें तो इंशाअल्लाह आप भी काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात अपने दिल की एक चीज़ करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से मेरे दिल में खलिश रही थी और मैं दिल से वो निकाल नहीं पा रहा था। आज मुझे ये मौका मिला है कि वो दिल की बात आपके सामने शेयर करूं। एक चीज़ का ख्याल करें कि दुनिया में कोई भी कमतर नहीं होता है। हर आदमी छोटा हो या बड़ा, अक्लमंद हो या कम अक्लमंद हो, होशियार हो जो जिस टाइप का होता है, हर आदमी में कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर शामिल होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले मेरी तारीख भी मुझे याद है, हालांकि मैं इस उम्र में चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन वो तारीख में अभी तक नहीं भूला।
1 फरवरी 2022 के अंदर एक कोई क्रिकेट का फंक्शन हुआ था। वहाँ पर मुझे भी वहाँ पर मदऊ किया था कि आप भी वहाँ पर आएँ और वहाँ क्रिकेट के कोई अवार्ड वगैरह दे रहे हैं तो आप भी वहाँ पर अपनी कुछ ख्यालात का इजहार करें। तो उस फंक्शन में मैं गया हुआ था, वहाँ पर रेलवे ग्राउंड के अंदर फंक्शन था। उस फंक्शन के अंदर वहाँ पर मैंने अपनी ख्यालात का इजहार किया और कहा कि मेरी नीयत है और मैं सोच रहा हूँ कि तकरीबन 40 साल से मैं 45 साल से सोच रहा था कि हमारी कम्युनिटी का कोई एक हॉस्पिटल बने। और पाकिस्तान से हिस्ट्री के अंदर अभी तक कच्ची अमन कम्युनिटी का कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मेरा ख्वाब है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़िंदगी में ये हॉस्पिटल बना दे और उसमें कामयाब हो जाऊँ। इस सिलसिले में काफ़ी मेरे दोस्त, हमदर्द, बहुत से लोगों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम भी आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम इस काम में आपको साथ देंगे। एक दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और वो व्हाट्सएप पे लॉलीपॉप दिखाया जाता है मुझे। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि मैंने एक कोई बहुत ऐसी बात कह दी जिसको मुझे लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। बहरहाल मैंने उनको जवाब दिया कि बेटा आपने जो मुझे लॉलीपॉप भेजा है उसका शुक्रिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आपने देखना कि वो हॉस्पिटल का ख्वाब पूरा हुआ। मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और मैं दिल से उनसे बहुत ही उनकी कदर करता हूँ और आज भी उनकी कदर करता हूँ और आज तक उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमारे कम्युनिटी के बहुत ही नेक नवाज इंसान हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं उनका नाम कभी भी नहीं लूँगा। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मेरी कामयाबी में एक तो मेरे वालिद साहब का हाथ है, बुजुर्गों का हाथ है, और दूसरा मैं आज अप्रिशिएट करूँगा हमारी चची का नाम का भी। हमारी चची जो ज़फ़र सोबानी की वालदा हैं वो भी काफ़ी मोटिवेट करती रही हैं और हमेशा दुआएं देती रही हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो थोड़ी बहुत जो मुझे कामयाबी नज़र आ रही है हॉस्पिटल के सिलसिले में, वो मेरी चची की दुआओं के साथ भी है। और वो हमेशा ये कहती हैं कि अजीज़ भाई आप हिम्मत करें, अल्लाह ने चाहा तो आपका ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी में ये हॉस्पिटल कामयाब हो जाए। आज मैं एक हमारी बरादरी के सामने एक और बड़ा बोल बोलना चाहता हूँ। पहला बोल मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में हॉस्पिटल बन जाए। आज दूसरा बोल ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी भी में तो ना हो, लेकिन जब तक मेरी हयाती है उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए जो हमारी बरादरी के लिए हो। वो है एकोमोडेशन रेजिडेंट्स का। और वो इस वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान है जो मैं आपको अभी बता नहीं सकता। उस प्लान के तहत तकरीबन 1000 फ्लैट बन सकते हैं। आज जो मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ तो शायद आज भी आपको ये लग रहा होगा कि ये ख्वाब है, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये ख्वाब भी शम्ए ताबीर होगा।
ان الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ تمام بھائیوں کا دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے اور اس فنکشن کو کامیاب کیا. بہت بہت شکریہ.